So hello friends, welcome and welcome back to my channel that is Creating Assets Makes Money More. In today's video we are going to talk about a strategy based trade which I have taken. So for that let me start with the trading view on Nifty 50 charts first. So it was initially from the start I was thinking of buying, and what was my plan that if this level means this 705 or 6, or I was supposing around 10, here it is, but when it breaks 20 or like at this point I will take a buy position somewhere around this point. Whenever suppose a market open at this point and it hover somewhere around this point and it's break the level, then I will purchase and I will put my stop loss somewhere on this particular point means I will put my stop loss somewhere at this particular point and I will be waiting for that. But what happened, it's open a little bit high, and then from the high it hit 20, and then sudden fall was there in 15-minute candlestick. So I wasn't trading in this because I was expecting to open it here and go upward, but it didn't go in that way as I planned. So what I did, I was waiting because it was a clearly a sailing. If you wait for some time and see this, after this time I was thinking to sail it over here. And why it is, let me explain. But I didn't take a sale position here because initially I was thought like I will take only a buy position today only. So I didn't take a sale position, and let me give you an idea how. Okay, I will tell you about the sailing here. Means on this particular, like I found a sailing straight over here, but I didn't take that. I mean, so put to buy option, but I didn't take because from the start I was thinking of buying instead of selling. So I did put position over here, and then I trade. Like I was waiting for the time, and when it hits, I was thinking about buy also, but like I was thinking to it like it will take some support over this particular point, but when it reached, I was like, that was my contra trade, and I converted that into a PE because that over here. Let me explain how it is. So if I will convert into 5 minutes candlestick, then it will be clearly visible. So it takes a support, and what happens whenever market goes good fall, then it has to go some up point and then it start falling, because it cannot happen like it goes down from the up to down if there is a known negative sentiment or news based trading. So in this situation I was thinking that it has to go downward if it breaks the level, and then after that word it breaks the level. So I thought like, yeah, I will buy at somewhere on this particular point when it breaks the level, and when it breaks the level my stop loss somewhere on this particular point. And from there, let me show you. So my stop loss will be around this particular point, 64 or 66, and I will buy around 50 when it breaks the list level. So when it breaks the level, what happened, it gave me a really good profit. And then at this point I was thinking like I should buy it, but there was no confirmation. But what I did, I converted into a daily chart, and then I see there is clearly uh, previously high point was supporting that. Let me show you previous high. So this point, no, not this point. That was a really good candle. Let me check it out. Okay, here it is. So this candle I was talking about. So see, it is a 601, and I thought like, yeah, it could be a really good point to buy, and I was thinking of buying side. And if you see the market, it was already quite fallen, and it's not a like a bearish market, so it has to come and come upward. And then I take a buy position with the really small stop loss, and let me go to my trading platform so that I can guide you when and how I did it. So okay guys, let me start with the trades over here. So मैंने दिखाया आपको कि मैं वहाँ पे क्या सोच रहा था और किस तरीके से मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा. नाउ लेट मी मूव टू द पॉइंट्स कि किस तरीके से मैंने इसे विद द ट्रेड गाइस. तो ये जो ट्रेड है ना, इस ये क्योंकि उस समय करंट मार्केट प्राइस पे था 18,600 का ऑप्शन, तो इसे मैंने बाय किया था. एंड लेट मी शो यू व्हेन आई बाइड इट, बिकॉज मेरी मिस्टेक्स क्या होती थी ना, मैं बहुत हेस्टी होकर के इसे बाय कर लिया करता था जो मुझे पसंद आया करते थे स्टॉक्स और जो भी ऑप्शन में जिसे मैं ट्रेड करना चाहता, तो मैं
यूजुअली उसे परचेज़ कर लिया करता था। बट वो राइट तरीका नहीं होता जब तक कन्फर्मेशन ना हो। तो बट देखो यहाँ तो मुझे इट वाज़ लाइक रियली गुड दैट कि यहाँ से जब इसने अपने आप को रीच किया ना और ये इस लेवल तक पहुँच गया और उसके बाद यहाँ पे ये अगर मैं आपको इसका प्राइस में दिखाऊँ तो प्राइस उसके बाद मैंने इसे 120 पे यहाँ पे बाय किया था। काफ़ी देर लगा इस जब इसका कन्फर्मेशन हो गया ना उसके बाद यहाँ पे 120 पे बाय करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस था 110 का, जो कि इस पॉइंट के नीचे था। 110 का मतलब 10 रुपीज़ का लॉस, और इस पॉइंट से मैंने इसे बाय किया एंड इसमें मैंने 5 मिनट्स का वो फॉलो किया था। 5 मिनट्स का फॉलो किया था मीन्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब मेरे 10 का बाइंग था, यहाँ पे मेरे को 20 की प्रॉफिट चाहिए थी, मतलब 140 के आसपास का मुझे यहाँ पे टारगेट चाहिए था, ये टारगेट चाहिए था मुझे, ठीक है। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, तो यहाँ से ऊपर जाते गए यहाँ तो देखो अब यहाँ तो सेल करना ही नहीं है, इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया या टारगेट हिट होना है। तो जब ये इस पॉइंट को 140 क्रॉस करता है तो यहाँ पे मैं एक्टिव हो जाता हूँ कि अब मुझे यहाँ पे वेट करना है और फिर यहाँ पे जो भी पोजीशन होगा मैं इसमें प्लेस करूँगा या एग्जिट करूँगा। एंड देन व्हाट हैपन कि ये ना एक नेगेटिव कैंडल बन यहाँ पे 140 पे हिट होता है और फिर एक थोड़ा सा नेगेटिव बनता है इस पॉइंट पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा था। सी, तो इस पॉइंट पे ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस था तो यहाँ पे थोड़ा तो इसको शो करना ही है निगेटिविटी। तो यहाँ पे इसने एक हल्की सी नेगेटिव कैंडल क्रिएट की थी जो कि इस प्राइस में यहाँ पे आपको चेक कर पाओगे तो 140 से ना ये 130 के आसपास पहुँच चुका था। तो यहाँ पे 130 के आसपास पहुँचा था। लकीली ये मेरा हिट नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो 140 के बाद सी दिस, जब मैंने यहाँ पे अपना 140 जब ये हिट हो गया तो 140 के बाद यहाँ पे मैंने अपना एक स्टॉप लॉस डाला था। तो ये 130 के आसपास डाला था जो कि मेरा स्टॉप लॉस था इस पॉइंट पे। वो लकीली मेरा हिट नहीं हुआ था 130 का, मतलब इससे भी थोड़ा सा नीचे 15 पॉइंट। वो लकीली मेरा हिट नहीं हुआ। अगर हिट हो जाता तो नो वेल एंड गुड, फिर भी मैं एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड पे होता। फिर इसके बाद से जो इसने बूम किया ना, दैट वाज अ काइंड ऑफ रियली गुड प्लेस फॉर मी। एंड देन आप देखोगे कि ये 1 मिनट में काफ़ी अच्छा भागा एंड फिर मैं उसके 5 मिनट्स के कैंडलस्टिक पे लेके चलता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का एक स्ट्रेटजी फॉलो किया जिसमें कि देखो 5 मिनट्स इसको रीच करने के बाद सॉरी मैं अपने चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो 5 मिनट्स पे ये आया, उसके बाद फिर ये वाला कैंडल, उसके बाद एक कंटिन्यूटी में यहाँ तक गया 90। जब ये 90 चला गया ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इन द सेंस मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए होता है डे का, उसने अपने आपको यहाँ से अगर आप 20 से जो काउंट करोगे तो 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिया 7 टाइम्स। 1:7 का है जो काफ़ी इनफ होगा मतलब। तो इसमें फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था ना, इसको इस पॉइंट पे 85 के आसपास हो जब ओवर करा तो 80 का मैंने यहाँ पे डाला था स्टॉप लॉस जो कि हिट हो गया। एंड अब ये स्टॉप लॉस हिट होने के कारण यहाँ पे ये मेरा एक एग्जीक्यूट हुआ। और दूसरा इसी पॉइंट पे मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि मैंने साइड देखो ये ना मैंने आज ट्राई किया। और दूसरा जो मैं करता हूँ यूजुअली कि मैं बाय कर लेता हूँ जैसे ही मुझे प्राइसिंग मतलब कि चार्ट्स में नज़र आता है। तो इस मुझे चार्ट में ना ये विजिबल हो रहा था कि यार यहाँ से बाइंग होने वाली है। तो मैंने इस किसी पॉइंट पे बाय किया था एंड दैट पॉइंट वाज अराउंड 112 रुपीज़। तो 112 के आसपास इस किसी पॉइंट पे मैंने बाय किया था 112 पे, और 10 का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने जो कि यहाँ पे था 10 का स्टॉप लॉस। सॉरी 10 का स्टॉप लॉस आपका आएगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। और ये मैं यूजुअली मैं प्रैक्टिस ऐसे ही करता हूँ जिसमें कि मैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेता हूँ और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस था 12 की बाइंग थी। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा 20। और एक मेरा यहाँ पे एक दूसरा ऑर्डर मैंने 20 पे बाय किया था जो कि समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइंग का ऑर्डर लगा हुआ था। बट आप यहाँ पे नोटिस करोगे काफ़ी देर मतलब कि 15 मिनट तक वो नहीं आया, जबकि मार्केट में ऑलरेडी वो उसको क्रॉस कर चुका था, इस लेवल को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था। जबकि मैं आपको यहाँ शो करता हूँ देखो। तो अगर मैं 10-15 की कैंडल स्टिक उठा के देख रहा हूँ तो ये 10 के ऊपर क्रॉस किया इस कैंडल ने, ठीक है। फिर एक नेगेटिव कैंडल बनी 10-20 पे और 10-25 पे इसने क्रॉस कर दिया। 10-25 पे इसने क्रॉस कर दिया। बट अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ये 10-30 पे ये क्रॉस करती है कैंडल इसको, इसके हाई को 120 के हाई को 10-30 पे, मतलब उसके काफ़ी लेट क्रॉस करती है 5 मिनट्स। तो जहाँ पे मैं क्या गलती पहले करता था ना कि मैं जैसे ही इस कैंडल ने क्रॉस किया ना, इस कैंडल ने इस यहाँ पे क्रॉस किया मैं बाय कर लेता था। और सपोज़ कि फिर मैंने उस कैंडल जैसे ही क्रॉस किया मैंने समवेयर अराउंड कहीं इस किसी पॉइंट पे बाय कर दिया और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखता था तो मेरा हिट हो जाया करता था, ठीक है। तो उसे अवॉइड करने के लिए
मैंने क्या किया कि इस बार इसके ब्रेक पे बाय किया जो कि इस पॉइंट पे आता है, और इसका भी ब्रेक था वो 120 का पॉइंट था, ये आप चेक करोगे। तो इसका जो पॉइंट है 120 के ब्रेक करने के बाद मैंने सोचा कि ये जब ये रीच कर देगा, ब्रेक कर देगा, 15 मिनट्स मैं लेके चलता हूँ, 15 मिनट्स वहाँ पे आपको मैं 120 का क्यों लगाया मैंने आपको बता पाऊँगा सीधे से। तो ये जब इसको रीच करेगा ऊपर से इसके कैंडल को, तो मैं एक 15 मिनट्स में इसको बाय करूँगा। तो ये कैंडल मुझे मेरी बाय होती है 25 पे, सॉरी 30 के आसपास ये मेरी बाय होती है इस किसी पॉइंट पे, जो कि 5 मिनट्स लेट होता है। और ये बट जो लेट है ना, ये कन्फर्मेशन के साथ है, तो यहाँ पे मैंने इसे बाय किया। एंड फिर जो दूसरा मैंने बाय किया था 112 पे, उसे 140 पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि इस पॉइंट पे ये होवर कर रहा था। तो क्योंकि वो 112 पे जो मैंने बाय किया था वो ऑब्वियसली काइंड ऑफ रॉन्ग था, क्योंकि उसमें कोई कन्फर्मेशन भी नहीं था, एंड स्टिल मैंने उसे बाय किया था, बिकॉज़ ये मेरे इंस्टिंक्ट था कि मैं मतलब जो प्रैक्टिस फॉलो करते आ रहा था उसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। चलो, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैंने ऑर्डर्स कब लगाया और कैसे लगाया, ताकि आपको ये मतलब कि विजिबल हो। 180 पे निकल चुका था काफ़ी पहले ही, एंड इसमें 4500 का प्रॉफिट बना। एंड इसमें जो टोटल चार्जेस लगे 120 रुपये लगे हैं। चार्जेस इन द सेंस ऑफ ब्रोकरेज चार्जेस पर 20 रुपये पर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अगर आप चेक करोगे तो ये चार्जेस आया 120 रुपये का चार्ज लगा, तो 4000 का प्रॉफिट हुआ आज के डेट में। एंड अगर 400 में निकाल भी देता हूँ तो बहुत अच्छा एक स्ट्रेटजी वाइज था, जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ। अभी 1 बज चुका है, अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, और मार्केट में अब क्या हो। एक कॉन्ट्रा मूव तो आती है 1 बजे के आसपास, तो यहाँ पे पुट बनाने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी खोजना होगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कॉल ही के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। अगर मैं देखता हूँ कोई ट्रेड इसी तरीके का अगेन से बनाता हूँ जिसमें 2 या 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा, एंड आई विल वेट फॉर सम टाइम एंड द कन्फर्मेशन ऑल्सो, एंड फिर मैं उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। सो टिल दैट टाइम गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। एंड ये प्रॉफिट मैं इसे रिप्रेस कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो। एंड इसके अगेंस्ट मैंने एक और पोजीशन भी क्रिएट की थी, वो थी मेरी सेलिंग साइड में। तो सेलिंग साइड में क्या हो रहा है मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ। तो मैं अभी थोड़ा सा लेट वर्क करता है, बट या स्टिल गुड, क्योंकि सेलिंग के लिए मैं अभी सेलिंग प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। तो 4 लैक्स के अकॉर्डिंगली मैंने इसे क्रिएट किया है, और ये अभी मेरे को 62 रुपीज़ के आसपास का निगेटिव शो हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे ज़रा सा इसमें, तो इसमें मेरी 4 लैक्स हैं, जिसमें कि एंट्री पॉइंट 12 रुपये की है, और अभी और ये 14 रुपये का है। तो ये मेरा पुट ऑप्शन का है, जो कि मुझे अच्छा प्रॉफिट दे चुका है ऑलरेडी। ये 250 का लॉस, ये 850 का प्रॉफिट, मतलब 650 का प्रॉफिट ये लैग मुझे दे रहा है। और इसके अगेंस्ट में मैंने 18,800 की कॉल को सेल किया था, जो कि 1,500 का लॉस दे रहा है। उसके अगेंस्ट में मैंने 19 रुपये के आसपास बाई किया था, 850 का प्रॉफिट दे रहा है। सो गाइज, ये मैंने ट्रेड क्यों बनाया था ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। और अभी ये इसमें इसको एंड होने में टाइम है। मैं इसमें मैक्स टू मैक्स 500 का लॉस लूँगा, एंड अगर 500 से ऊपर हो जाता है तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। अदरवाइज़ अगर फिर से कोई ऑप्शन, इसमें फिर से कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो मैं इसे एग्जिट करूँगा। और गाइज़ ये देखो, ये 14 रुपये के आसपास, 15 रुपये के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। तो 15 रुपये इसने मुझे ऑलरेडी दे दिया अपने अंदर से। 22-32 रुपये के जो, ये 8 तारीख 32 रुपये का ये जो एक्शन एंट्री प्राइस था, जो कि अभी 14 रुपये हो गया है। सो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 17 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट चल रहा है, एंड इसके अगेंस्ट में 6 रुपीज़ का यहाँ लॉस चल रहा है। तो लेसन मोर 10 to 12 रुपीज़ का प्रॉफिट इस लैग में चल रहा है। एंड इस लैग में अगर मैं देखूँ तो 30 रुपीज़ का लॉस इसमें है, एंड 20 रुपीज़ का प्रॉफिट इसमें है, मतलब 10 रुपीज़ का लॉस अगेन इसमें हो गया है। तो लेसन मोर आप देख पा रहे होंगे 62 रुपीज़ का ही लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट पुट साइड में दिया उसने कॉल साइड में थोड़ा सा लॉस क्रिएट किया है। एंड उसके अगेंस्ट में मेरा 62 रुपीज़ का लॉस है, जो कि फेयर इनफ है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी मेरे पास टाइम भी है। पुट तो देखो, पुट तो मेरा अब ज़ीरो हो जाने वाला है अगर मार्केट यहाँ पे स्टे कर जाती है, बट कॉल ऑप्शन जो भी हायर प्राइस पे चल रहा है, मतलब 70 पे चल रहा है अभी, अगर ये अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पे अगर ये स्टे कर जाती है मार्केट हमारी ऊपर में जाकर के, तो ये भी मुझे प्रॉफिट दे जाएगा। तो 500 तक का प्रॉफिट मैं इसमें से अर्न कर पाऊँगा। सो ये मेरी आज की स्ट्रेटजी थी गाइज़, और आज के लिए ऑप्शन के लिए मैंने आज जो किया था, आई गेस मैं इतने पे ही रखूँगा। एंड इसके आगे मैं मैक्स टू मैक्स अपने अकाउंट में से 500 का लॉस लूँगा अगर मैं कोई नया ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो। जैसे 10 रुपये तक का मैं 2 या 5 रुपये का मैं अपना स्टॉप लॉस डालूँगा उसमें, एंड नेक्स्ट यही मेरा स्टॉप रहेगा आज का ट्रेड आज। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड
this is all for today guys, and I hope you enjoy the video. And it is for me guys, और ये मतलब वीडियो एक्चुअली मैं अपने लिए ही बनाता हूँ कि फ्यूचर में अगर मैं कभी पास्ट में देखूँ तो मुझे ये वीडियोस उस पॉइंट का उस फील को याद दिलाएं जब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपनी इस फेज़ में. That is all from my side guys, and thank you for watching. Have a great day ahead.